خانیوال موٹروے پولیس ڈی ایس پی سجاد احمد گوندل انسپکٹر گلزار حسین نے اپنی ٹیم کی جانب سے خانیوال کے شہریوں اور روڈرز میں فیس ماسک تقسیم کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں خانیوال سے عدنان رسول کی اس رپورٹ میں۔ خانیوال موٹر وے پولیس M4 بیٹ نمبر 21 ڈی ایس پی سجاد احمد گوندل انسپکٹر گلزار حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سیکٹر کمانڈر سیکٹر 2 احسان دانش کولیار کی ہدایت پر شام کو ٹول پلازا پر حکومت پاکستان کی کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کی صورت میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم دیتے ہوئے تمام روڈ یوزر کو ماسک پہنائے۔ ڈی ایس پی سجاد احمد گوندل اور انسپکٹر گلزار حسین نے روڈ یوزر میں ہینڈ سینیٹائزر اور فیس ماسک بھی تقسیم کیے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے پبلک ٹرانسپورٹر کو وارننگ بھی دی گئی، آئندہ کرونا ایس او پیز کو اپنانے کی ہدایت کی۔ اعداد و شمار کے مطابق یہ کووڈ کی 19 کی جو نئی لہر آئی ہے وہ انتہائی ڈینجرس ہے اور پہلے سے بھی یہ خطرناک وبائی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جس طرح دوسرے ادارے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس بھی اپنا اس میں حصہ ڈال رہی ہے۔ روڈ استعمال کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو ہم آگاہ کر رہے ہیں، بریفنگ آفیسر جو ہمارے بریفنگ پوائنٹس پہ کھڑے ہیں وہ لوگوں کو بریف کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم فیس ماسک جو ہیں وہ بھی لوگوں کو دے بھی رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کا استعمال کریں۔ ان اقدامات کا مقصد مسافروں میں ایس او پیز بارے شعور آگاہی اجاگر کرنا ہے تاکہ مسافروں کو موجودہ صورتحال میں فوری کورونا وائرس سے بچایا جا سکے۔ موٹر وے M4 بیٹ نمبر 21 نے خانیوال میں روڈ یوزر کو فیس ماسک تقسیم کی اور روڈ کا آگاہی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ کیمرامین خالد جٹ کے ساتھ رسول بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے خانیوال۔ خیرپور میں علاقہ مکینوں کا نوجوانوں کے قاتل کو گرفتار نہ کرنے کے خلاف سیشن کوٹ روڈ پر علامتی بھوک ہڑتال کیمپ قائم کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں خیرپور سے ہمارے نمائندے سراج الدین شہبانی سے۔ سراج الدین بتائیے گا کیا کیا مطالبات رکھے گئے ہیں؟ جی، ببرلو کے رہائشی شیخ برادری کے افراد کا نوجوان کی قاتلوں کی گرفتاری کے لیے خیرپور اسٹیشن کورر روڈ پر علامتی بھوک ہڑتال کیمپ قائم کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان مظاہرین سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ 27 تاریخ کو جمعے کے دن 1:30 بجے ببرلو میں ذیشان حیدر ایک 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، شاگرد تھا، سریعام مین ہائی وے پہ قتل کیا گیا ہے۔ ہم احتجاجی مظاہرہ اس کے لیے کر رہے ہیں کہ ذیشان حیدر کے قاتل گرفتار کیے جائیں۔ ان کے 5 بندوں کے اوپر FIR بھی SSP کھیرپور اور SHO ببرلو وہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور کوئی گرفتاری لامل میں نہیں آئی ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے، ہمارا بھتیجا بے گناہ اس کو قتل کیا گیا ہے، ہم غریب آدمی ہم کہاں جائیں گے؟ ایسا ظلم ہوگا تو یہ ہم دھاڑل بن جائیں گے۔ یہ SSP جو خیرپور کا ہے یہ ان سے دوستی چلا رہا ہے۔ ہم غریب آدمی کو انصاف چاہیے اور ذیشان حیدر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارا نوجوان 10 جماعت کا طالب علم تھا جس کو بلا جواز قتل کیا گیا ہے، جس کی FIR بھی کٹی گئی ہے مگر ملزمان گرفتار نہیں کیے گئے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ نوجوان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ قاتلوں کو ضرور گرفتار کریں گے۔ بہت شکریہ سراج الدین شہبانی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو دوسری جانب پپلا میں DPO میاں والی کیپٹن ریٹائر مستنصر فیروز کی ضلع کے تمام سرکل افسران اور SHOs کے ساتھ کرائم میٹنگ کی گئی۔ میٹنگ کے دوران تمام افسران کی کارکردگی اور کرائم کنٹرول کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں حفیظ اللہ خان نیاز کی اس رپورٹ میں۔ DPO میاں والی کیپٹن ریٹائر مستنصر فیروز نے ضلع بھر کے تمام سرکل افسران اور SHOs کے ساتھ کرائم میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران تمام افسران کی کارکردگی اور کرائم کنٹرول کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر DPO کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی جائیں، مجرمان اشتہاریوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور شر پسند عناصر پر عقابی نظر رکھی جائے تاکہ ضلع میاں والی امن کا گہوارہ بن جائے۔ جرائم کی روک تھام میں ناقص کارکردگی دکھانے والے افسران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ کیمرہ مین محمد ماجد کے ساتھ حفیظ اللہ خان نیازی، ٹی وی ٹوڈے۔
थाना जामपुर के एसएचओ ने जुल्म की इंतहा कर दी। नामालूम मुकदमे में 2 शरीफ चेहरियों को मुलव्विस करके 16 लाख रुपए ले लिए। मुतासरीन का आरपीओ डीजी खान के ऑफिस के बाहर एसएचओ जामपुर के खिलाफ एहतजाज किया गया। थाना जामपुर के एसएचओ आबिद शरीफ ने सऊदीया से आने वाले खलील अहमद को घर वापस आने पर भाई एजाज समेत अगवा कर लिया और उसको नामालूम मकाम पर अपने टॉर्चर सेल में रखकर उसके बेटे से 30 लाख की डिमांड की। 16 लाख लेने के बाद वालिद को रिहा कर दिया। मुतासरीन ने आरपीओ डीजी खान के ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे मुकदमे की इंक्वायरी की जाए और करप्ट एसएचओ आबिद शरीफ से हमारे 16 लाख रुपए वापस दिलवाए जाएं। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। इलाके को ट्रैफिक के लिए बंद करके इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई। रेस्क्यू 1122 के इलाके मुजफ्फरगढ़ के इलाके कोट अद्दू रोड पर ओवरटेकिंग करते हुए पेट्रोल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। रेस्क्यू के मुताबिक ऑयल टैंकर में 15,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। उलटने के बायस ऑयल टैंकर से पेट्रोल का सड़क पर बहाव भी शुरू हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे के बाद कोट अद्दू रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और इमदादी टीमें भी तलब कर ली गई। के सऊदी अरब में मजलिस-ए पाकिस्तान की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। शुरका से कीनिया में इस्लामिक रिसर्च सेंटर के चेयरमैन राव अख्तर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, इस पर अमल करके अपनी जिंदगियों में आसानियां पैदा की जा सकती हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्किदा मजलिस पाकिस्तान के इजलास में ओहदेदारों और मेंबरान के अलावा कम्युनिटी अरकान भी शरीक थे, जिनसे कीनिया में इस्लामिक रिसर्च सेंटर के चेयरमैन राव अख्तर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस्लाम मोहब्बत, रवादारी और यगांगत का दीन है, जो लोगों को आपस में माशरती तौर पर जिंदगी गुजारने के रहनुमा असूल भी सिखाता है। अफ्रीका में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, रहनुमाई हासिल कर रही हैं और इस्लामी फराइज की अंजाम दही भी कर रही हैं। दुनिया भर में दीन इस्लाम की दुरुस्त इरशाद और तालीमात के जरिए बेहतरी लाई जा सकती है। राव अख्तर ने बताया कि वो 1970 से कीनिया में मौजूद हैं और इस्लामिक रिसर्च सेंटर में खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं, जिससे अब तक सैकड़ों तलबा फारिगुल तहसील होकर दुनिया भर के अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं और कामयाब जिंदगी भी गुजार रहे हैं। चीचावतनी में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की मौसर हिकमत अमली से जराइम और हादसात में नुमाया कमी वाक़या हुई। चीचावतनी डीएसपी सुहेल अफजल ने तमाम अफसरान को नेक नियति और ईमानदारी से काम करने की हिदायत की है, जिस पर तमाम अफसरान ने अमल पैरा होकर अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए बैट नंबर 16 में गश्त का मुआयना मुद्दत भी ज्यादा बढ़ा दिया। ट्रैफिक कवानीन और हादसात से बचने के लिए आगाही मुहिम भी दी जा रही है। इस मौके पर डीएसपी सुहेल अफजल ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर ही हम अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गलत यू टर्न का इस्तेमाल कभी न करें। नौशहरा विरका थाना कोट लद्दा के इलाके नोखर में पुराने रंजिश पर मुसल्ला अफराद का मजदूर मेहनतकश की दुकान पर धावा बोल दिया गया। 10 से ज्यादा अफराद ने असलहा और डंडों से दुकान पर मौजूद अफराद को तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। नौशहरा विरका के नवाही इलाके में दर्जन से ज्यादा अफराद का मेहनतकश की दुकान पर धावा। मुलजिमान ने असलहे और डंडों से दिन दिहाड़े दुकान की तोड़ फोड़ की और दुकानदार को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। इससे कबल भी मुलजिमान दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। कोट लद्दा पुलिस ने कहा कि मुलजिमान की शिनाख्त की जा रही है। दरख्वास्त मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। पीर महल में अजब करप्शन की गजब कहानी। बेनकाब म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की जानिब से बेनजीर पार्क के मीटर से बिजली फरोख्त का भांडा फूट गया। अमला 6 साल से बिजली फरोख्त का सिलसिला कर रहा था। बेनजीर पार्क के करीब अरबों रुपए के जारी प्रोजेक्ट स्कूल एक्सेलेंस की बिल्डिंग पिछले 5-6 साल से बन रही है, जिसको म्यूनिसिपल कमेटी के अमले के चंद लोग ठेकेदार से मिली भगत करके अफसरान के नोटिस में लाए बगैर बिजली चोरी फरोख्त करते थे। अमला ठेकेदार से मुबैना मिली भगत से महाना 50 से 60 हजार रुपए तक
वसूल करता था, जबकि बिजली का सारा बिल म्युनिसिपल कमेटी के खजाने से अदा किया जाता था। नए तायुनात चीफ ऑफिसर मियां मनशा ने इल्म में आते ही फौरी एक्शन लेते हुए बिजली मुनक़ता करके इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। पाक फौज के सिपाही मोहम्मद वसीम की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और अहलकार नान की शिरकत देखने में आई। चकवाल रोड पर हादसे के बायस जान की बाजी हारने वाले पाक फौज के सिपाही और नवाही इलाका नजद जातली के रिहायशी मोहम्मद वसीम को पूरे फौजी एहसास के साथ स्पुर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद वसीम की 1 साल कबल शादी हुई थी। हादसा गुज़िश्ता रोज रेत्याल स्टॉप पर पेश आया। मोहम्मद वसीम के नमाज जनाजा में पाक फौज के कर्नल खुरम और दीगर अफसरान अहलकार ने शिरकत की। कंदकोट में शहरी तफरीह से महरूम 13 साल गुजर जाने के बावजूद भी लिको पाक मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद टीवी टुडे के नुमाइंदे अब्दुल फहीम चाचड़ से। अब्दुल फहीम चाचड़, अपडेट कीजिएगा। बदली हुक्मरान बदले, ना बदला तो कंदकोट के शहरियों की किस्मत ना बदली। 2007 में कंदकोट का लेक्यू पार्क जो संगे बुनियाद रखा गया था, लेकिन उसको 13 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये लेक्यू पार्क का काम मुकम्मल नहीं हो गया। और यहाँ के इलाके मकीनों से जो हमारी बातचीत हुई तो इलाके मकीनों का कहना था कि 13 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। और जो करोड़ों रुपए बजट थी वो ठेकेदार मिली भगत से हड़प कर गया। और यहाँ के इलाके मकीन इस वजह से बहुत परेशान हैं। इस जदीद दौर में भी यहाँ के इलाके मकीन जो हैं वो तफरी से महरूम हैं। 13 साल गुजर गए लेकिन इसका काम नहीं हुआ। सिर्फ वाल बाउंड्री तक ही इसका काम महदूद है। और यहाँ के इलाके मकीनों ने हुकूमत वक्त से और ज़िले इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा कि खुदा के वास्ते इस पार्क को मुकम्मल किया जाए ताकि हम जो है तफरी कर सकें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल फहीम चाचड़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब कबीर पाला मुल्तान रोड सिविल अस्पताल के करीब देरीना दुश्मनी पर पेशी पर जाते हुए मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जाम बहक और एक जख्मी हो गया। मुल्तान रोड सिविल अस्पताल के करीब पेशी पर जाते हुए मुखालिफिन की फायरिंग से गुलाम मुस्तफा नामी शख्स जाम बहक हो गया और एक शख्स को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और आपको बताएं कि पेशी पर आ रहे थे, जबकि मुल्जिमान कबीरवाला बाटी बंगला के रिहाइश और मकतूल के रिश्तेदार हैं। इत्तला मिलते ही ASP और थाना सिटी की पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल ने कहा कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए नाजायज तजावुजात का खात्मा नागुज़ेर है। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ कमाल ने अंदरून शहर पाक पतन बाजार, दीपालपुर बाजार वगैरह का दौरा किया। इस मौके पर सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाजी अब्दुल लतीफ, सदर ट्रेडिंग विंग PTI शेख नुमान आसिफ और मुतलका मार्केट्स की ताजर नुमाइंदे भी थे। उन्होंने कहा कि अंदरून शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन दिन रात सरगर्म अमल है। कारोबारी औकात में शहर में बड़ी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी यकीनी बनाई जा रही है। टंडूवाला यार में ऑफिस तीसरी मंजिल पर क्यों बनाए, मासूर अफराद सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं बैतुल माल ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक गए लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला। मजीद तफसीलात टंडूवाला यार से अब्दुल रशीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बैतुल माल ज़िले ऑफिस के सामने माजूर अफराद सरापा एहतजाज। कहते हैं बैतुल माल की ऑफिस तीसरी मंजिल पर है, सीधा बंदा नहीं बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, माजूर कैसे चढ़े। महीने हो गए बैतुल माल की ऑफिस पे आते हूँ। ऑफिसर बोलते हैं भाई आपके पैसे आए हैं, लिस्ट बन रही है, पता नहीं कब लिस्ट बनेगी। अभी तक तो कोई बात ही नहीं कि सुनते हैं। पटे वाला होता है इधर, वो बोलते हैं भाई ऑफिसर नहीं आया है। भाई ऑफिसर पता नहीं कब बैठेगा, कब लिस्ट आएगी। 2 महीने हो गए अभी तो लिस्ट ही नहीं बन रही है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान बैतुल माल का अमला हमें हर रोज़ ये कहकर वापस जाने का कहता है कि लिस्ट भेज दी है। माजूरों ने शिकवा किया कि हम 2 माह से 200 से 300 रुपये किराया भरकर ऑफिस पहुंचते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। वैसे तो हम चक्कर 7-8 साल से लगा रहे हैं,
जब भी फार्म भरवाते हैं ये बोलते हैं भाई फार्म में हो गए ये वो पता नहीं कहाँ कर देते हैं, मगर अब ये 2 महीने से मुसलसल हम चक्कर लगा रहे हैं, सिर्फ रक्षों का किराया भाड़ा भर रहे हैं और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। हमारे को सिर्फ दिलासे मिल रहे हैं कि भाई हाँ हो गए हैं, अभी लिस्ट बन रही है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे को सिर्फ ये आश्रय मिलते हैं, ऑफिसर भी कभी होता है कभी नहीं होता, अभी भी ऑफिसर ऑफिस में नहीं है, क्लार्क भी नहीं है। माजूरों ने पाकिस्तान बैतुल माल के नाअहल अमले के खिलाफ फौरन हटाने, जिम्मेदार अमला तैनात करने, मुआवजा फौरन जारी करने का मुतालबा किया। कैमरामैन एहतशाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, टीवी टुडे न्यूज़, टंडोलियार। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।